हाँ सर, નમસ્કાર. સૌથી પહેલા તો અમે માફી માંગીએ છીએ કેમ કે ખરેખર અમે બધા 8:45 જોઈન થાય છે, 4 મિત્રો જોઈન થયા અને પછી કોઈ જોઈન ના થઈ શક્યું સાહેબ. એટલે સૌપ્રથમ તો તમને ક્ષમા કે તમે અડધો કલાક સુધી તમારે આમ વેઇટ કરવું પડ્યું. સર, અવાજ સંભળાય છે ને બરાબર? हाँ जी, हाँ बिल्कुल. હા, તો બસ હવે 5 જ મિનિટમાં આપણે શરૂ કરીએ છીએ. જયમલભાઈ જોઈન થઈ ગયા છે, તો રીતેશભાઈને આપણે કહીએ કે એ જરા હું આવી ગયો છું. હા, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જયમલભાઈ કોઈ પણ સમય બગાડ્યા વગર હવે શરૂ કરો ઓકે. અને એટલું સંચાલનમાં કોઈ સમય ના બગાડતા સીધું ને સીધું આપણે સ્પષ્ટ વક્તાને સમય મળીને એવું કરીએ પ્લીઝ. મને લાગે છે અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદનો પરિચય આપણે ટાળીએ. ટાળીએ. આપણે એટલે પ્રાર્થના કરી અને તરત જ આપણે વક્તા પર અને રીતેશભાઈ મીટિંગ જોઈન કરીએ આપણે હવે. ઓકે. ચંદ્રેશભાઈ પણ હાજર થઈ ગયા છે. રીતેશભાઈ રેકોર્ડિંગ ઓન થઈ રહ્યું છે ને હવે? સ્ટાર્ટ. ઓકે. હા, સૌને નમસ્કાર. અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ કર્ણાવતી મહાનગર એકમના સૌ મિત્રો અને આજના આપણા પ્રમુખ વક્તા શ્રી ધીરજભાઈ. કબીરા ખડા બાजार में लिए लुकाटी हाथ, ચોગર ફૂકે આપના ચલે હમારે સાથ. આમ જોવા જઈએ તો કબીર એ આપણી સંત પરંપરાની સાથે ફિલોસોફી પરંપરાના માણસ છે અને એ નિમિત્તે આપણે કબીર જયંતિ પછી આજે પંચમીની મીટિંગમાં જોડાયા છીએ. હું માનનીય અમૃતભાઈને વિનંતી કરીશ કે કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરે અને પ્રાર્થના પછી આપણે સીધા જ વક્તાને આમંત્રિત કરીશું. માનનીય અમૃતભાઈ, પ્લીઝ. अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनक्षानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ. ખૂબ જ સરસ અમૃતભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપનો ધન્યવાદ. હવે હું વર્ષાબેનને વિનંતી કરીશ કે વક્તાશ્રીનો ટૂંકમાં પરિચય આપે અને પછી આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. માનનીય વર્ષાબેન. હા, બિલકુલ. નમસ્કાર સર. ધીરજભાઈ વણકર સાહેબનું આપણા અખિલ ભારતીય કર્ણાવતી મહાનગર એકમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. સાહેબ શ્રી આજે કબીર કા સામાજિક સંદર્ભ એ વિષય ઉપર હિન્દીમાં સરસ માનનીય વક્તવ્ય આપવાના છે. એમનો આમ તો દીર્ઘ પરિચય છે, પણ આપણે ટૂંકમાં પરિચય એમનો આપીએ તો પોતે વક્તા સિટી શિવસા કોલેજમાં અધ્યાપક છે. અબ ચૂપ થોડે રહેંગે 2015માં એમનો પ્રકાશિત કાવ્ય સંગ્રહ છે. 2017માં હौसलो की उड़ान બીજો કાવ્ય સંગ્રહ છે. 2021માં ઘૂંટણ ભરી જિંદગી કાવ્ય સંગ્રહ. આ 3 કાવ્ય સંગ્રહ એટલે એમનું કવિ પદ કેટલું ઊંચું છે આપણને અહીંયાથી ખબર પડે છે. 2015માં તિલ કા તાડ એવો હાઇકુ સંગ્રહ તેમનો પ્રકાશિત થયેલો છે. 2022માં શબ્દ તરંગ શીર્ષક હેઠળ એમનો બીજો હાઇકુ સંગ્રહ પ્રકાશિત થયેલો છે. ખૂબ આનંદની વાત છે કેમ કે આજના સમયમાં હાઇકુ જેવો સરસ મજાનો કાવ્ય પ્રકાર ખૂબ ઓછો ખેડાય છે, ખૂબ ઓછું લખાય છે. ત્યાં આ કવિ આટલું સરસ કામ કરે છે, એનો આનંદ છે. એમણે ગુજરાતીમાં પણ એક કાવ્ય સંગ્રહ આપ્યો છે, માણસ જાતનું શું ઠેકાણું. શીર્ષક જ એટલું મહત્વનું આમ લાગે આપણને કે વાંચવાનું મન થઈ જાય કે માણસ જાતનું શું ઠેકાણું. બિલકુલ આપણે ગમે ત્યારે એમની પાસેથી આ સંગ્રહ મંગાવીશું અને વાંચીશું. એમના 9 આલોચનાત્મક પુસ્તકો છે, 8 સંપાદન પુસ્તકો છે, 2 અનુવાદિત પુસ્તકો છે, 150 થી વધારે હિન્દીમાં તેમના આર્ટિકલ્સ છે. એ બહુ જ મોટી વાત. અને 100 થી વધારે ગુજરાતીમાં આર્ટિકલ્સ છે. 20 જેટલી લઘુકથા વક્તાશ્રીએ લખી છે. એટલે એ માત્ર નથી, એ સર્જક છે, આપણે એમ કહી શકીએ છીએ. ગુજરાતમાં ગુજરાત હિન્દી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા એમના 5 પુસ્તકો શ્રેષ્ઠ રૂપમાં પુરસ્કૃત થઈ ચૂકેલા છે. કેન્દ્રીય નિદેશાલય માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દિલ્હી દ્વારા
પુરસ્કૃત પણ કરવામાં આવ્યું છે. સાહેબ શ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એ માટે. 3 જેટલા એમના પીએચડી સંશોધકો રહી ચૂક્યા છે અને 3 એમફિલના વિદ્યાર્થીઓ એમની પાસેથી ડિગ્રી મેળવી ચૂકેલા છે. દૂરદર્શન પર પણ તેઓ કવિ તરીકે ઉપસ્થિત રહી ચૂક્યા છે. એટલું જ નહીં પણ સુંદર સંચાલન પણ તેઓ કરે છે. કાફી અલગ અલગ જુદી જુદી એટલે યુનિવર્સિટીમાં એઓ રેફરી તરીકે પણ પોતે કાર્યરત છે અને આ સિવાય પણ બીજી જે હિન્દી ગુજરાતી સાહિત્યિક સંસ્થાઓમાં જે કામ થઈ રહ્યું છે સાહિત્યનું, એમાં પણ તેઓ જુદા જુદા પદ પર ક્યારેક પ્રમુખ, ક્યારેક અધ્યક્ષ, ક્યારેક ઉપાધ્યક્ષ એ રીતે એ જોડાયેલા રહ્યા છે. તો આ મોટી પ્રતિભાને આજે આપણે અહીંયા આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. તેમનો સમય વધુ ન બગાડીએ અને કબીર કા સામાજિક સંદર્ભ એ વિષય પર સાહેબ શ્રી પોતાનું મનનીય વક્તવ્ય આપે. વેલકમ સાહેબ. आभासी मंच पर उपस्थित आप सभी को पहले मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भद्रावती महानगर इकाई द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करते हुए इस आज के कार्यक्रम के घोषक श्री जयमल भाई देसाई जी, आदरणीय संदीप कानाड़े जी, अभी जिन्होंने सुंदर परिचय दिया ऐसे डॉक्टर वर्षा प्रजापति जी, कवि स्नेही परमार और एक अच्छे युवा कवि हमारे बीच में आज उपस्थित है चंद्रेश मकवाना जी से लगभग हम सभी वाकिफ हैं। एक बहुत अच्छे युवा कवि हैं चंद्रेश जी को भी मैं यहाँ याद कर रहा हूँ और जिनकी वजह से मुझे आज ये मंच पर मेरे विचार रखने का मुझे अवसर दिया गया है, डॉक्टर ख्याति पुरोहित जी। और आप सभी को फिर से मेरा नमन। मैं सीधा विषय पर जा रहा हूँ क्योंकि काफी समय हमारा लेकिन ये तो तकनीक है और तकनीक में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो तकनीक का काम करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर एक बार हम कोशिश रियली जरूर करेंगे कि सॉरी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा समय है उसी समय में मेरी बात को मैं मुख्य जो चीजें मुझे आपके सामने पेश करनी है उसी चीज को मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कर्णावती महानगर की ये इकाई है, इस इकाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार की व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में हम ऑनलाइन और वो भी रात के समय हम नौकरी आदि से आकर के फुर्सत के समय में तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कबीर का सामाजिक संदर्भ या कबीर का सामाजिक चिंतन पर मैं कुछ विचार आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कबीर पर अपना विद्वतापूर्ण व्याख्यान दे रहा हूँ, पर मेरे व्याख्यान के बाद आपको पता चलेगा कि ये व्याख्यान कैसा रहा, वो तो श्रोता ही बता सकते हैं। भारतीय भूमि एक ऐसी भूमि है, ये संतों की भूमि है, महंतों को भूमि है और ऋषि मुनियों की भूमि है। और आप जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति जो है विश्व की उत्तम संस्कृति में हमारी देश की संस्कृति गिनती होती है। 15वीं शताब्दी जो हमारे देश में रही वो 15वीं शताब्दी हमारे लिए बहुत बड़ी शताब्दी रही, क्योंकि 15वीं शताब्दी के दौर में हमारे देश में पूरे देश में एक भक्ति का एक आंदोलन चला और उस भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत से चली। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हम देख लीजिए, यहाँ मैं पहले स्पष्टता कर देता हूँ, यहाँ किसी जाति धर्म से संबंधित मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं कबीर की वाणी को ध्यान में रख करके मैं मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुगलों के आक्रमण के दौरान जब हमारे हिंदू पूरे नाराज हो गए, हमारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, ऐसे दौर में हताश हिंदू जनता ईश्वर की शरण की ओर गई और दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई। इसके लिए एक बहुत बड़ी एक प्रसिद्ध दोहा है, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। रामानंद गुरु ने भक्ति का आविर्भाव दक्षिण भारत से किया और धीरे धीरे महात्मा कबीर पूरे भारत भर में उन्होंने भ्रमण किया और जहां गए वहां जाकर के अपने विचारों को उन्होंने जनता के सामने देखा।
सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर पहले संत है, बाद में संत के बाद भक्त, भक्त के बाद हम उसको कवि कहेंगे। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, उन अनुभवों को ही उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के सामने कहा और बाद में उनको संग्रहित किया गया। अब कबीर के जन्म से अगर हम बात शुरू करेंगे तो उनके लिए किंवदंतियां प्रसिद्ध है भी। कबीर का जन्म जो है, इनको जन्म देने वाली एक ब्राह्मण कन्या थी, वो विधवा थी। उनके पिताजी के साथ रामानंद के साथ वो गई। रामानंद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के फलस्वरूप एक बच्चे को जन्म दिया। और उस जमाने में आज से 600 वर्ष पूर्व एक विधवा का इस प्रकार से बच्चे को जन्म देना हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उनके माता उनकी जो माँ थी, उस विधवा ब्राह्मण कन्या ने इसको काशी के लहर तारा तालाब जो है, उस लहर तारा तालाब किनारे जुलाहा नाम की एक जाति है जिसको हम बुनकर कहते हैं। तो उस जुलाहा जाति के नीरू और नीमा नाम के दंपति वहीं से गुजर रहे थे। उनको एक बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। वो दोनों निसंतान थे। तो उस बच्चे की आवाज को सुन करके उन्होंने उस बच्चे को उठाया, अपने घर ले आए, लालन पालन किया और उसका नामकरण किया और नाम रखा गया कबीर। और उसका अर्थ होता है बहुत बड़ा विद्वान। कबीर का अर्थ वही होता है। आपने बोला कि पालक माता पिता जो है नीरू और नीमा। उसके बाद कबीर की शादी हुई लोरी नाम की कमाल, लड़की का नाम कमाली। ये दो उनके संतान हुए। बाद में कहते हैं कि कबीर ने विधिवत रूप से उनको कोई गुरु नहीं मिला, क्योंकि वो उस निम्न समाज में पैदा हुए थे। लेकिन किसी ने बताया कि रामानंद जी जो हैं वो तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कबीर जी उस तालाब की सीढ़ियां जो थी उस सीढ़ियों पे सो गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वहीं से सीढ़ियां उतर रहे थे और कबीर के सीने पे उनके पैर पड़े तो उनके मुंह से एक शब्द निकल उठा, राम। और उसी दिन से कबीर ने राम को अपना इष्ट देव के रूप में। लेकिन एक बात साफ है कि कबीर का राम दशरथ सुत राम नहीं है। कबीर क्योंकि वो भारतीय भक्ति काल में मुख्य रूप से दो प्रकार की भक्ति हमारे यहाँ अस्तित्व में आई थी, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति हम उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, ईश्वर अगोचर होता है, जहाँ हमारी इंद्रियां जो है वो पहुंच नहीं सकती। और साकार रूप में जिसमें ईश्वर का एक साक्षात रूप होता है। जब रामाश्रय काव्यधारा की हम बात करेंगे तो तुरंत राम का एक चित्र, राम सीता लक्ष्मण वन में जाते हुए एक चित्र हमारे सामने तुरंत खड़ा हो जाता है। हम कृष्ण काव्यधारा की बात करें तो तुरंत हमारे सामने बाल कृष्ण, मटका तोड़ने वाले, मक्खन खाने वाले, गाय को चराने वाले, या तो गोपियों के साथ रास लीला खेलने वाले कृष्ण का एक चित्र, एक दृश्य जो है, एक बिंब जो है वो हमारे सामने तुरंत खड़ा हो जाता है। लेकिन ये निर्गुण काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। अब कबीर शिक्षित थे या नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। कबीर ने खुद ने स्वीकार किया है कि वो निरक्षर थे। मसीह कागज छोड़ो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसीह कागज छोड़ो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तुम कहत कागज पर लिखी, मैं कहत अपने अखियन की देखी। उन्होंने मुल्ला को, पंडितों को, विद्वानों को, शास्त्रकारों को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप जो बता रहे हैं वो शास्त्रों को पढ़ करके, शास्त्रों में जो लिखा गया है उस बात को आप लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा निजी अनुभव है। मैं कहत अपने अखियन की देखी, मैंने जो देखा है अपने आसपास, क्योंकि कबीर तो घूमते फिरने वाले
अक्कड़ थे, पक्कड़ थे, वो तो जहां जाते थे वहां सुनाते थे, अपने साथियों को, अपने भजनों को सुनाते रहते थे। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मसीह कागज छू नहीं, कलम नहीं है, तुम कहत कागज की लेखी, मैं कहत अपनी अखियन की देखी, कैसे तेरा और मेरा मनवा एक हो ही रे, तो तुम्हारे ईश्वर और मेरे ईश्वर एक नहीं हो सकते। अब हम आएंगे कबीर की रचनाओं पर। कबीर के नाम पर एक ग्रंथ मिलता है, हो सकता है कि उनके शिष्यों ने उसका संपादन किया हो। उसका नाम है बीजक, और उस बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं आपको मिलेगी, साखी, शबद और रमैनी। कबीर की साखी के लिए कहा गया, कबीर की साखी है ज्ञान की आंखी, ये ज्ञान की आंखी है। कबीर की एक एक साखी, एक एक दोहा, एक एक पद, एक एक उलट बांसी। 600 साल पहले हो गए कबीर ने तत्कालीन समाज में जाति पाति, छूआछूत, बाह्याडंबर, पत्थर पूजा, व्रत, तीर्थ, रोजा आदि जो भी समाज में बुराई या 3 सारी आदमी ने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए पूरा अपने संसार का त्याग कर दिया। थे, कपड़े बुनते थे और साथ साथ में साथिया जीनी जीनी चदरिया रे, ऐसे उस प्रकार से वो चले थे। तो बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें साखिया संकलित है, उसमें शब्द है और उसमें रमैनी है। अब हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु की एक बहुत सुदीर्घ परंपरा है। हमारे यहाँ अगले महीने 8 महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। कुछ दिन पहले कबीर जयंती पूर्णिमा, ज्येष्ठ सुदी आषाढ़ सुद पूनम के दिन गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। गुरु शब्द जो है वो 2 अक्षरों से बना, एक है गु और दूसरा है रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मतलब लाइट चली गई और अंधकार हो गया, उस अंधकार की बात नहीं है। और हम लोग जिन बातों से, आध्यात्मिकता से, जीव जगत ब्रह्म आदि से हम अवगत नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उस तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने का काम गुरु करता है। गुरु का काम होता है अपने शिष्य को सही रास्ते पर ले जाना, सही दिशा पर ले जाना, ये गुरु का काम होता है। तो कबीर वाणी में सबसे पहले सामाजिक संदर्भ को लेंगे तो उन्होंने गुरु महिमा पर बहुत बड़ा बल दिया, और वो गुरु महिमा की महत्व दर्शाते के वो कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद जी को बताए। कबीर जी भगवान से भी, ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो गुरु को मानते हैं। वो कहते हैं कि गुरु तक पहुंचने का रास्ता जो है, गुरु ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है, ब्रह्म तक जाने का जो रास्ता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को सफल कराने के लिए बीच में अगर कोई पथ दर्शक है तो वो है गुरु। इसलिए वो गुरु गोविंद में से पहले गुरु को प्रणाम करने की बात कहते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि गुरु भी कैसे होने चाहिए। आजकल हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि अमृत भाई और ख्याति जी और प्रजापति मैडम कि आजकल में सच्चे गुरु मिलना बहुत कठिन काम है। अच्छे गुरु जब नहीं मिलेंगे, गुरु सदाचारी नहीं होगी, जब गुरु खुद गुरुत्व का महत्व नहीं समझेंगे, खुद तो अंधा होगा, अपने चेले को भी जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंज। कभी कहते हैं जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंज, अंधे अंधे मिलिया ठेलम दोनों कूप पड़न। खुद कुछ नहीं जानते, खुद को कुछ मालूम नहीं है, वो खुद तो गलत रास्ते पर जा रहा है, साथ साथ में अपने शिष्य को भी लेकिन अगर हमें सदगुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, सदाचारी गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो गुरु हमारा
जीवन कल्याण कर देता है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। देख लीजिए कबीर कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावण हार। अब देख लीजिए कि कबीर जी कहते कि हमारी आंखें अनंत लोचन उघाड़िया, आंखें हमारी खोल दी, आत्मा को परमात्मा तक जाना है, भगवान तक पहुंचना है। किस प्रकार से सांसारिक मोह माया से विमुक्त होकर के ईश्वर तक पहुंचना है। तो उसमें अगर हमें सदगुरु तक किया हम जो चाहते हैं, लेकिन अगर जाता गुरु अंधला चेला खरा निरंतर, अगर ऐसा गुरु मिल गया तो ये बहुत वो दिक्कत की बात होती है। कबीर ने बाह्य आडंबर, बाह्याचार आदि पर जबरदस्त प्रहार किया। इसलिए हम कबीर को एक समाज सुधारक कहते हैं, कबीर को हम क्रांतिकारी कह सकते हैं, कबीर को हम संतों में संत कबीर भी कह सकते हैं। यानी एक समाज सुधारक है, क्रांतिकारी है। इससे भी बड़ी बात यह कि सब पहले मानवतावादी, और एक ऐसे मानवतावादी है कि जिन्होंने सभी को साथ में लेकर के, उस जमाने में हमारा समाज जो था वो अधःपतन की ओर जा रहा था। हिंदू मुसलमान की आपस की जो मुद्दा था, उन्होंने दोनों को खुलेआम चैलेंज के साथ किया, क्योंकि वो निडर था, निर्भीक था, निडर था, जो भी कहता था सच कहता था, बिना निडरता के साथ साफ कह देता था। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे वन माही, ऐसे गटी गटी राम दुनिया देखे न न्यारी। देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में इधर उधर घूमते फिरते हैं। 2-4 पूनम भर दी हमने अंबाजी की, या तो 2-4 पूनम हमने ठाकुर की भर दी। किसी ने बता दिया नहीं भाई मैं तो एक ही पूनम में गया था चोटीला, मेरा काम हो गया तो अंबाजी को छोड़ के चोटीला जाएंगे। तो ये कबीर जी जो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसई मृग डूडे वन माही, जो हिरन होता है उस हिरन की नाभि के अंदर ही कस्तूरी का वास होता है। लेकिन हिरण को पता नहीं है कि ये जो श्वासोश्वास की क्रिया के परिणाम स्वरूप अंदर से जो श्वास आ रही है वो भागता जाता है, लौटता जाता है कि उस तलाश में, खोज में कि ये कहां से सुगंध आ रही है। तो कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे वनमाई, से घटी घटी राम यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। कबीर कहते हैं कि आप मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं तो घूमते फिरते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, न मंदिर न मस्जिद न काशी न कैलाश। ये जो है, अब हम लोग मूर्ति पूजा की बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए हम किसी भी व्यक्ति की आस्तिकता पर कोई मैं बात नहीं कर रहा है, मैं तो कबीर की वाणी पर ही चर्चा कर रहा हूँ। हम मूर्ति पूजा करते हैं। कबीर जी ने मूर्ति पूजा का, रोजा का, नमाज का भी खुल करके विरोध किया। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर से बनी हुई मूर्ति को पूजने से अगर ईश्वर मिलता है तो मैं पूरा हिमालय को पूजने के लिए तैयार। हमारे घर में जो चक्की है जिसमें हम अनाज डालते हैं और उससे वो आटा मिलता है, अगर इसकी पूजा की जाए तो अच्छी बात है। तो ये उन्होंने खुलकर विरोध किया मूर्ति पूजा की, पत्थर पूजे हरि मिले। और इस्लाम संप्रदाय के लोगों से उन्होंने कहा कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरो साहिब बहरो है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरो साहिब बहरो है। और आगे फिर बोलते हैं चिट्टी पैर नुपुर। अब आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि आप जोर जोर से आप भांग पुकारते, वो तो चीटी कितनी, चीटी का पैर कितना, वर्षा मैडम चीटी का पैर, चीटी कितनी, चीटी का पैर कितना, और उसमें उसका नूपुर, वो पायल, और पायल की भी वो घुघरी जो आप गुजराती में बोलते हैं उसकी आवाज भी वो सब तो सुनता है। वो कहते हैं ना, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरो साहिब
बहरो हम। यानी वो तो आप दूसरों को वो कर रहे हैं। अगर हम जब भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो स्मरण करना चाहिए, एकाग्रता से, एक चित्त से, एकाग्रता से मन लगा करके। बढ़िया, अगर सुंदर सीरियल चल रही है, कोई भी सुंदर सीरियल चल रही है, आजकल तो महिलाओं को लेकर के ज्यादा सीरियल चल रही है, और उन सीरियलों में मैं देखता हूँ, उन सीरियलों में से ख्याति सीरियल बनाने वाले बढ़िया सीरियल बनाते हैं, उनका उद्देश्य अच्छा होता है, पर उसी में से हम लोग कितनी अच्छाइयों को लेते हैं, उस पर मैं जाऊंगा तो 1 घंटा चला जाएगा, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर मुझे ये कहना है कि मूल मुद्दा ये है कि अगर हम एकाग्रता से, एक चित्त से किसी बढ़िया फिल्म को, सीरियल को देखते वक्त अपने आप को भूल जाते हैं। मम्मी 3 बार बुलाएगी अपनी बच्ची को, बेटा बेटा बेटा, क्या तो मोबाइल में खोई हुई है या सीरियल में खोई हुई है। तो एकाग्रता से अगर हम भक्ति करेंगे तो कबीर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अखड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। देखो उनकी भक्ति देखो, अखड़िया यानी आंखों, अखड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अब देखो क्या हम ऐसी भक्ति कर सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी अखड़िया जाई पड़ी। गुजराती में बोलते हैं ना कि वो क्या आ गया, मुझे तो बहुत वो पता भी नहीं चलता है उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत जल्दी से गुजराती शब्द मेरे में नहीं वो आएगा, लेकिन वो जो भी कहते हैं, अखड़िया जाई पड़ी निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़ा पंथ निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़ा। राम राम बोलते बोलते उनकी जबान में अब मनुष्य जन्म लेने के बाद या तो किसी को जाति पर घमंड होता है, किसी को धन पर घमंड होता है, किसी को रूप पर घमंड होता है, अलग अलग तरह का घमंड होता है। उन घमंड को भी उन्होंने तोड़ा है। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मुझे। अब कुम्हार जब मिट्टी को भक्त कुम्हार, हमारा भक्त, ये फील्ड में भी गुजराती में गोरो कुम्हार, हाँ भक्त गोरा कुम्हार। अब आप देख रहे हैं कि वो तल्लीन हो गया तो बच्चा भी उसी अंदर आ गया, वो पैर के नीचे कुचल गया, उनको पता ही नहीं चलता। तो मिट्टी को रोकते रोकते वो बहुत खुश होता है, कौन, कुंभकार, कि मैं तो मिट्टी को रोद रहा। तो मिट्टी क्या कहती है, चैलेंज करती है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मुझे, एक दिन ऐसो आएगो जब मैं रो दूं तुझे। यानी ये हम मिट्टी में जन्मे हैं, जिसका जन्म है इसकी मृत्यु निश्चित है, ये हमारी क्षण भंगुरता है। और वो भी कहते हैं कि माली आवत देख के कलिया रोवे, है ना, कलिया भी रो रही है, क्यों, क्योंकि जो फूल पल्लवित हुए थे उन फूलों को माली ने चुन लिया, और कलिया वो रो रही है कि कल हमारी बारी है, देख लीजिए। तो ये भी एक क्षण भंगुरता की बात की है। आज से 600 साल पहले कबीर जी ने संग्रहखोरी की ओर हमें चेतावनी दी थी। आजकल काला बाजार चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है हमारे समाज में। शिक्षा, कबीर की वाणी का एक एक शब्द आज भी इतना ही प्रासंगिक है जितना 600 साल पहले था। वो कहते हैं संग्रहखोरी को लेकर के, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हम लोग क्या करेंगे, 7 पीढ़ियां हमारी खाए ना, इतना इकट्ठा कर लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा दूसरे में, विषय को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर हमारे यहाँ एक क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि 7 पीढ़ियां था, इतना तो इकट्ठा कर लेंगे। कबीर जी कहते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब, आप इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का मैं लालन पालन कर सकूं। मेरे यहाँ कोई अतिथि आए, कि भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, ये हमारे यहाँ अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति इसीलिए तो विश्व की, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उस समय के बाद हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम लोग पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये हमारी संस्कृति है। सुबह में समय के मुताबिक उठना, उठ करके ब्रश आदि प्रातः क्रियाओं को निपटा के चाय पीना, उसको बोलते हैं प्रकृति, बराबर। और 10-12 बजे उठना और सीधा चाय पर आक्रमण करना, उसको बोलते हैं विकृति। सुबह समय पे उठना,
ब्रश आदि प्राथमिक क्रियाओं को समाप्त करके चाय नाश्ता करना उसको बोलते हैं प्रकृति। 12 बजे 10 बजे उठना, सीधे चाय नाश्ते पर ख्याति आक्रमण करना उसको बोल। खाना खाने बैठे हैं वर्षा जी, और अगर कोई भिखारी आया और हमारे पास 1 रोटी या 2 रोटी है, उसी में से 1 रोटी अगर हम देंगे तो उसको कहते हैं संस्कृति। ये इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति, इसीलिए तो उसको उत्तम हम मानते हैं। तो साइक ना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उनकी उलट भाषा भी अगर आप देखेंगे तो गाय, अब देखो अचंबो देखो, टाटा सिंह चराए गाय। अब सिंह गाय को चराएगा, सिंह का तो खाद्य है गाय, लेकिन ये हमारे शरीर की जो इंद्रियों का मन जो है, सबसे बड़ा ये मन जो है वो चलाते हैं और उसी की बात करते हैं। तो कबीर जो है, उस कबीर ने सामाजिक रूढ़ियों का, बाह्य आडंबर का, जो कुछ हमारे समय में तत्कालीन जो चल रहा था, हम लोग क्या करते हैं कि जब दुख आता है, संकट आता है, तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। और अगर हम अच्छे आय आ रही है तो मौज मस्ती, आज इस होटल में, कल एक्स होटल में, कल वाई में, आज क्या खाना बनाएंगे, तरह तरह की चर्चा विचार विमर्श करते हैं। अब कबीर जी वो कहते कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अमृत भाई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होई। और हम लोग जब दुख आएगा, बच्चे की सगाई नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम ईश्वर की शरण में जाएंगे। पर कबीर तो वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन करे न, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होई। अब दूसरी बात ये, कबीर की मृत्यु के बारे में भी तरह तरह कबीर 120 साल तक लगभग काशी में रहे। और उस जमाने में ऐसा था, आज भी है कि काशी में अगर आदमी का निधन होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो स्वर्ग में जाता है। कबीर ने उल्टा किया कि अपना पूरी जिंदगी 100 साल से ज्यादा समय वो काशी में रहे, और अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में ऐसा माना जाता था कि जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। और कबीर ने अपने शेष जीवन जो है वो मगहर में बिताया। इनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ, क्योंकि जन्म देने वाली हिंदू ब्राह्मण कन्या थी, लालन पालन इस्लाम संप्रदाय में हुआ। एक बड़ा चमत्कार हुआ, किसी ने चद्दर हटाई उसकी शव की, तो वहां शव नहीं था, वहां क्या बन गया, चमत्कार हो गया, फूल। और इन फूलों को उन्होंने आधा आधा बांट लिया। अब आजकल आप देखते हैं हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब प्रथा धीरे धीरे टूट रही है, विभक्त कुटुंब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कम से कम 5-7 कविताएं तो वृद्धाओं को केंद्र में रख करके मैंने लिखी है। अब हमारे यहाँ भाद्रपद आता है, उसमें श्राद्ध के दिन आते हैं। श्राद्ध के दिन आते हैं तो हम दादा परदादा पूर्वजों को हम खीर वीर बना के कौवा को आते हैं, वो करते हैं। और जब जिंदा होते तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते, पेटा नहीं करने का, पुणे में पड़े रहो। और वो भी बहुत संपन्न परिवार के माँ बाप उन वृद्धाश्रमों में होते हैं। तो उन्होंने कहा, जिंदा बाप को कोई ना पूजे, जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मर बाप पूजवाया, ऊपर चावल को लेकर कौवे को बाप बनाया। आप देख लीजिए कि भाई जिंदा जब तब खाना बाना जो देना था, तब तो आप माँ बाप ने सेवा नहीं की, और उसकी मृत्यु के बाद श्राद्ध के दिन आते हो, उन श्राद्ध के दिनों में आप मुट्ठी भर चावल और उसकी खीर बना, क्षण बंकुर है। कैसा कि जैसे सुबह होती है, प्रभात होते ही तारे, सभी प्रातः काल होगा तो तारे डूब जाते हैं। तो पानी केरा बूंद बूंदा, अस मानव की जात देखत ही छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। जैसे सूर्योदय होगा और तारे डूब जाते हैं, इस प्रकार से मनुष्य जीवन जो है वो ही है। कबीर
अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक और एक लोक जागरण के नायक थे। लोगों को जगाने का सबसे बड़ा काम जो है वो उन्होंने किया। लोगों को कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। अब देखो वो आदमी को घर का नहीं पड़ी है, अपने घर की पड़ी नहीं है, पड़ी है और समाज मत हो मेरी जैसी। तो वो बोलने लगे कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। अब देख लीजिए कि जिनमें अगर मेरी तरह की हिम्मत हो परिवार को, संसार को, समाज को छोड़ने की, समाज में व्याप्त रूढ़ियों की, मूर्ति पूजा की, आलोचना की, तरह तरह के जो था। अब कबीर जी कहते हैं कि हम दूसरे लोगों की बुराइयों को देखते हैं। हम सब, मेरे बारे में, आपके बारे में कोई थोड़ा बोलेंगे ना तो आपका जो है ना टेम्परेचर जो है ना 47 हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा। कि मेरे बारे में अमृत भाई ने बोला, ऐसा बोला, कि अमृत भाई के बारे में धीरज भाई ने ऐसा बोला, ऐसा तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कबीर क्या बोलता है, बुरा खोजन को मैं चला बुरा मिला न कोई, बुरा खोजन को मैं चला बुरा मिला न कोई, जो मन भीतर ढूंढियो अपनो मुझसे बुरा न कोई। अब देख लीजिए कि मैंने तो मेरी अंतरात्मा को, मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। तो 12वीं शताब्दी की 15वीं शताब्दी में कबीर का आविर्भाव, जायश्री का आविर्भाव, सुर का आविर्भाव, तुलसीदास का आविर्भाव, ये सारी चीजें जो है। और फिर अब जब हम भक्ति करते हैं तो हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी अपने मन को 5 मिनट के लिए स्थिर नहीं रख सकते। सुबह सुबह में अगरबत्तियां दीपक जलाएगी तो सास अपनी बहू से क्या बोलेगी, वो जो गैस उभराई ना जाए। अब देखो एक हाथ में दीपक है, अगरबत्ती है, कि वो जो बेटा गैस ना उभराई जाए। तो कबीर क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, मन फिरे, जीभ फिरे, मुख 10 दिशा, मनुआ तो 10 दिशे फिरे, यहू सुमरन नहीं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद। तो इस प्रकार से उन्होंने, उस प्रकार से सच्ची भक्ति यही है अमृत भाई कबीर के मुताबिक, कि हम ईश्वर और हमारे बीच का जो भेद है उसको एक पतली एक दीवार है। आत्मा और परमात्मा के वेदों में भी कहा गया है, क्या कहा गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। फिर तुरंत जगत उत्तर जवाब दिए, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कौन, अहम ब्रह्मास्मि। तो कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समान। देखो कुंभ जो होता है, जल में कुंभ, एक बड़ा, उसमें हमने घड़ा डाला। अब कुएं का पानी अलग है, अब घड़ा में पानी गया तो एक घड़े का पानी हो गया, था तो कुएं का। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। अब कुएं में जो पतला जो स्तर है ना, जो है वो आत्मा और परमात्मा को अलग करती है। कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। यहाँ जो पूंजीवादी जो है, या जिनके पास जो समृद्ध है, धनिक वर्ग जो अमीर जना जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। कबीर ने इनको भी नहीं छोड़ा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है। यहाँ कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कोई परेशान करते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो सत्यानाश करवानी हाई लाख से। तो ये हाई लाख से शब्द अगर कोई बोल गया वर्षा मैडम, तो हमको तुरंत होगा कि ये एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जिससे हमें कुछ नुकसान पहुंचने वाला अमृत भाई, बराबर। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के पास लोग बस बना हो। तो ये जिस प्रकार, अब देख लीजिए कि कोई हमारी निंदा करेगा, टीका करेगा, हमारे विरोध में बोलेगा, वो हमें जरा भी
पसंद नहीं आएगा। लेकिन कबीर तो क्या बोलता है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाए अपने घर के पास, पास में कुटी बनाओ, कुटी में बना के हमारे बारे में जो भी गलत फलत जो कुछ તો પોતે વક્તા સિટી શિવસા કોલેજમાં અધ્યાપક છે. અબ ચૂપ થોડે રહેંગે 2015માં એમનો પ્રકાશિત કાવ્ય સંગ્રહ છે. 2017માં હौसलों की उड़ान બીજો કાવ્ય સંગ્રહ છે. 2021માં ઘૂંટણ ભરી જિંદગી કાવ્ય સંગ્રહ. આ ત્રણ કાવ્ય સંગ્રહ એટલે એમનું કવિ પદ કેટલું ઊંચું છે આપણને અહીંયાથી ખબર પડે છે. 2015માં તિલ કા તાડ એવો હાઇકુ સંગ્રહ તેમનો પ્રકાશિત થયેલો છે. 2022માં શબ્દ તરંગ શીર્ષક હેઠળ એમનો બીજો હાઇકુ સંગ્રહ પ્રકાશિત થયેલો છે. ખૂબ આનંદની વાત છે કેમ કે આજના સમયમાં હાઇકુ જેવો સરસ મજાનો કાવ્ય પ્રકાર ખૂબ ઓછો ખેડાય છે, ખૂબ ઓછું લખાય છે. ત્યાં આ કવિ આટલું સરસ કામ કરે છે એનો આનંદ છે. એમણે ગુજરાતીમાં પણ એક કાવ્ય સંગ્રહ આપ્યો છે, માણસ જાતનું શું ઠેકાણું. શીર્ષક જ એટલું મહત્વનું આમ લાગે આપણને કે વાંચવાનું મન થઈ જાય કે માણસ જાતનું શું ઠેકાણું. બિલકુલ આપણે ગમે ત્યારે એમની પાસેથી આ સંગ્રહ મંગાવીશું અને વાંચીશું. એમના 9 આલોચનાત્મક પુસ્તકો છે, 8 સંપાદન પુસ્તકો છે, 2 અનુવાદિત પુસ્તકો છે, 150 થી વધારે હિન્દીમાં તેમના આર્ટિકલ્સ છે, એ બહુ જ મોટી વાત. અને 100 થી વધારે ગુજરાતીમાં આર્ટિકલ્સ છે. 20 જેટલી લઘુકથા વક્તાશ્રીએ લખી છે, એટલે એ માત્ર નથી, એ સર્જક છે આપણે એમ કહી શકીએ છીએ. ગુજરાતમાં ગુજરાત હિન્દી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા એમના 5 પુસ્તકો શ્રેષ્ઠ રૂપમાં પુરસ્કૃત થઈ ચૂકેલા છે. કેન્દ્રીય નિદેશાલય માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દિલ્હી દ્વારા પુરસ્કૃત પણ કરવામાં આવ્યું છે. સાહેબ શ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એ માટે. 3 જેટલા એમના પીએચડી સંશોધકો રહી ચૂક્યા છે અને 3 એમફિલના વિદ્યાર્થીઓ એમની પાસેથી ડિગ્રી મેળવી ચૂકેલા છે. દૂરદર્શન પર પણ તેઓ કવિ તરીકે ઉપસ્થિત રહી ચૂક્યા છે. એટલું જ નહીં પણ સુંદર સંચાલન પણ તેઓ કરે છે. કાફી અલગ અલગ જુદી જુદી યુનિવર્સિટીમાં એઓ રેફરી તરીકે પણ પોતે કાર્યરત છે. અને આ સિવાય પણ બીજી જે હિન્દી ગુજરાતી સાહિત્યિક સંસ્થાઓમાં જે કામ થઈ રહ્યું છે સાહિત્યનું, એમાં પણ તેઓ જુદા જુદા પદ પર ક્યારેક પ્રમુખ, ક્યારેક અધ્યક્ષ, ક્યારેક ઉપાધ્યક્ષ એ રીતે એ જોડાયેલા રહ્યા છે. તો આ મોટી પ્રતિભાને આજે આપણે અહીંયા આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. તેમનો સમય વધુ ન બગાડીએ અને કબીર કા સામાજિક સંદર્ભ એ વિષય પર સાહેબ શ્રી પોતાનું મનનીય વક્તવ્ય આપે. વેલકમ સાહેબ. आभासी मंच पर उपस्थित आप सभी को पहले मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भद्रावती महानगर इकाई द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करते हुए इस आज के कार्यक्रम के घोषक श्री जयमल भाई देसाई जी, आदरणीय संदीप कानाड़े जी, अभी जिन्होंने सुंदर परिचय दिया ऐसे डॉक्टर वर्षा प्रजापति जी, कवि स्नेही परमार और एक अच्छे युवा कवि हमारे बीच में आज उपस्थित है। चंद्रेश मकवाना जी से लगभग हम सभी वाकिफ हैं। एक बहुत अच्छे युवा कवि हैं। चंद्रेश जी को भी मैं यहाँ याद कर रहा हूँ और जिनकी वजह से मुझे आज ये मंच पर मेरे विचार रखने का मुझे अवसर दिया गया है, डॉक्टर ख्याति पुरोहित जी और आप सभी को फिर से मेरा नमन। मैं सीधा विषय पर जा रहा हूँ क्योंकि काफी समय हमारा लेकिन ये तो तकनीक है और तकनीक में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो तकनीक का काम करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर एक बार हम कोशिश रियली जरूर करेंगे कि सॉरी सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा समय है उसी समय में मेरी बात को मैं मुख्य जो चीजें मुझे आपके सामने पेश करनी है उसी चीज को मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कर्णावती महानगर की ये इकाई है, इस इकाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार की व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया है।
ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में हम ऑनलाइन, और वो भी रात के समय, हम नौकरी आदि से आकर के फुर्सत के समय में इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कबीर का सामाजिक संदर्भ या कबीर का सामाजिक चिंतन पर मैं कुछ विचार आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कबीर पर अपना विद्वतापूर्ण व्याख्यान दे रहा हूँ, पर मेरे व्याख्यान के बाद आपको पता चलेगा कि ये व्याख्यान कैसा रहा, वो तो श्रोता ही बता सकते हैं। भारतीय भूमि एक ऐसी भूमि है, ये संतों की भूमि है, महंतों को भूमि है और ऋषि मुनियों की भूमि है। और आप जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति जो है, विश्व की उत्तम संस्कृति में हमारी देश की संस्कृति उनकी होती है। 15वीं शताब्दी जो हमारे देश में रही, वो 15वीं शताब्दी हमारे लिए बहुत बड़ी शताब्दी रही, क्योंकि 15वीं शताब्दी के दौर में हमारे देश में, पूरे देश में एक भक्ति का एक आंदोलन चला, और उस भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत से चली। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हम देख लीजिए, यहाँ मैं पहले स्पष्टता कर देता हूँ, यहाँ किसी जाति धर्म से संबंधित मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं कबीर की वाणी को ध्यान में रख करके मैं मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुगलों के आक्रमण के दौरान जब हमारे हिंदू पूरे नाराज हो गए, हमारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, ऐसे दौर में हताश हिंदू जनता ईश्वर की शरण की ओर गई और दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई। इसके लिए एक बहुत बड़ी एक प्रसिद्ध दोहा है, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। रामानंद गुरु ने भक्ति का आविर्भाव दक्षिण भारत से किया और धीरे धीरे महात्मा कबीर पूरे भारत भर में उन्होंने भ्रमण किया और जहां गए वहां जाकर के अपने विचारों को उन्होंने जनता के सामने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर पहले संत है, बाद में संत के बाद भक्त, भक्त के बाद हम उसको कवि कहेंगे। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, उन अनुभवों को ही उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के सामने कहा और बाद में उनको संग्रहित किया गया। अब कबीर के जन्म से अगर हम बात शुरू करेंगे तो उनके लिए किंवदंतियां प्रसिद्ध है भी। कबीर का जन्म जो है, इनको जन्म देने वाली एक ब्राह्मण कन्या थी, वो विधवा थी, उनके पिताजी के साथ रामानंद के साथ वो गई। रामानंद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के फलस्वरूप एक बच्चे को जन्म दिया। और उस जमाने में आज से 600 वर्ष पूर्व एक विधवा का इस प्रकार से बच्चे को जन्म देना हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उनके माता उनकी जो माँ थी, उस विधवा ब्राह्मण कन्या ने इसको काशी के लहर तारा तालाब जो है, उस लहर तारा तालाब किनारे जुलाहा नाम की एक जाति है जिसको हम बुनकर कहते हैं, तो उस जुलाहा जाति के नीरू और नीमा नाम के दंपति वहीं से गुजर रहे थे। उनको एक बच्चे की आवाज सुनाई दी थी, वो दोनों निसंतान थे। तो उस बच्चे की आवाज को सुन करके उन्होंने उस बच्चे को उठाया, अपने घर ले आए, लालन पालन किया और उसका नामकरण किया और नाम रखा गया कबीर। और उसका अर्थ होता है बहुत बड़ा विद्वान। कबीर का अर्थ वही होता है। आपने बोला कि पालक माता पिता जो है नीरू और नीमा, उसके बाद कबीर की शादी हुई लोरी नाम की कमाल, लड़की का नाम कमाली, ये दो उनके संतान हुए। बाद में कहते हैं कि कबीर ने विधिवत रूप से उनको कोई गुरु नहीं मिला, क्योंकि वो उस निम्न समाज में पैदा हुए थे। लेकिन किसी ने बताया कि रामानंद जी जो हैं वो तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कबीर जी उस तालाब की सीढ़ियां जो थी उस सीढ़ियों पे सो गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वहीं से सीढ़ियां उतर रहे थे
और कबीर के सीने पे उनके पैर पड़े तो उनके मुंह से एक शब्द निकल उठा, राम। और उसी दिन से कबीर ने राम को अपना इष्ट देव के रूप में, लेकिन एक बात साफ है कि कबीर का राम दशरथ सुत राम नहीं है। कबीर, क्योंकि वो भारतीय भक्ति काल में मुख्य रूप से दो प्रकार की भक्ति हमारे यहाँ अस्तित्व में आई थी, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति हम उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, ईश्वर अगोचर होता है, जहाँ हमारी इंद्रियां जो है वो पहुंच नहीं सकती। और साकार रूप में जिसमें ईश्वर का एक साक्षात रूप होता है। जब रामाश्रय काव्यधारा की हम बात करेंगे तो तुरंत राम का एक चित्र, राम सीता लक्ष्मण वन में जाते हुए एक चित्र हमारे सामने तुरंत खड़ा हो जाता है। हम कृष्ण काव्यधारा की बात करें तो तुरंत हमारे सामने बाल कृष्ण, मटका तोड़ने वाले, मक्खन खाने वाले, गाय को चराने वाले, या तो गोपियों के साथ रास लीला खेलने वाले कृष्ण का एक चित्र, एक दृश्य जो है, एक बिंब जो है वो हमारे सामने तुरंत खड़ा हो जाता है। लेकिन ये निर्गुण काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। अब कबीर शिक्षित थे या नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। कबीर ने खुद ने स्वीकार किया है कि वो निरक्षर थे। मसीह कागज छोड़ो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसीह कागज छोड़ो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तुम कहत कागज पर लिखी, मैं कहत अपने अखियन की देखी। उन्होंने मुल्ला को, पंडितों को, विद्वानों को, शास्त्रकारों को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप जो बता रहे हैं वो शास्त्रों को पढ़ करके, शास्त्रों में जो लिखा गया है उस बात को आप लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा निजी अनुभव है। मैं कहत अपने अखियन की देखी, मैंने जो देखा है अपने आसपास, क्योंकि कबीर तो घूमते फिरने वाले अक्कड़ थे, पक्कड़ थे। वो तो जहां जाते थे वहां सुनाते थे, अपने साथियों को, अपने भजनों को सुनाते रहते थे। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मसीह कागज छूओ नहीं, कलम गयो नहीं है। तुम कहत कागज की देखी, मैं कहत अपनी अखियन की देखी। कैसे तेरा और मेरा मनवा एक हो ही रे, तो तुम्हारे ईश्वर और मेरे ईश्वर एक नहीं हो सकते। अब हम आएंगे कबीर की रचनाओं पर। कबीर के नाम पर एक ग्रंथ मिलता है, हो सकता है कि उनके शिष्यों ने उसका संपादन किया हो। उसका नाम है बीजक, और उस बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं आपको मिलेगी, साखी, शबद और रमैनी। कबीर की साखी के लिए कहा गया, कबीर की साखी है ज्ञान की आंखी, ये ज्ञान की आंखी है। कबीर की एक एक साखी, एक एक दोहा, एक एक पद, एक एक उलट बांसी 600 साल पहले हो गए। कबीर ने तत्कालीन समाज में जाति पाति, छुआछूत, बाह्याडंबर, पत्थर पूजा, व्रत, तीर्थ, रोजा आदि जो भी समाज में बुराई या 3 सारी आदमी ने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए पूरा अपना संसार का त्याग कर दिया। थे, कपड़े बुनते थे और साथ साथ में साथिया जीनी जीनी चदरिया रे, ऐसे उस प्रकार से वो चले थे। तो बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें साखिया संकलित है, उसमें शब्द है और उसमें रमैनी है। अब हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु की एक बहुत सुदीर्घ परंपरा है। हमारे यहाँ अगले महीने 8 महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। कुछ दिन पहले कबीर जयंती पूर्णिमा, ज्येष्ठ सुदी आषाढ़ सुद पूनम के दिन गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। गुरु शब्द जो है वो 2 अक्षरों से बना, एक है गु और दूसरा है रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मतलब लाइट चली गई और अंधकार हो गया, उस अंधकार की बात नहीं है। और हम लोग जिन बातों से, आध्यात्मिकता से, जीव जगत ब्रह्म आदि से हम अवगत नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उस तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने का काम गुरु करता है।
गुरु का काम होता है अपने शिष्य को सही रास्ते पर ले जाना, सही दिशा पर ले जाना, ये गुरु का काम होता है। तो कबीर वाणी में सबसे पहले सामाजिक संदर्भ को लेंगे तो उन्होंने गुरु महिमा पर बहुत बड़ा बल दिया, और वो गुरु महिमा की महत्व दर्शा के वो कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद जी को बताए। कबीर जी भगवान से भी, ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो गुरु को मानते हैं। वो कहते हैं कि गुरु तक पहुंचने का रास्ता जो है, गुरु ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है, ब्रह्म तक जाने का जो रास्ता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को सफल कराने के लिए बीच में अगर कोई पथ दर्शक है तो वो है गुरु। इसलिए वो गुरु गोविंद में से पहले गुरु को प्रणाम करने की बात कहते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि गुरु भी कैसे होने चाहिए। आजकल हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि अमृत भाई और ख्याति जी और प्रजापति मैडम कि आजकल में सच्चे गुरु मिलना बहुत कठिन काम है। अच्छे गुरु जब नहीं मिलेंगे, गुरु सदाचारी नहीं होगी, जब गुरु खुद गुरुत्व का महत्व नहीं समझेंगे, खुद तो अंधा होगा, अपने चेले को भी जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंज। कभी कहते हैं जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंज, अंधे अंधे मिलिया ठेलम दोनों कूप पड़न। खुद कुछ नहीं जानते, खुद को कुछ मालूम नहीं है, वो खुद तो गलत रास्ते पर जा रहा है, साथ साथ में अपने शिष्य को भी लेकिन अगर हमें सदगुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, सदाचारी गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो गुरु हमारा जीवन कल्याण कर देता है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। देख लीजिए कबीर कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावण हार। अब देख लीजिए कि कबीर जी कहते कि हमारी आंखें अनंत लोचन उघाड़िया, आंखें हमारी खोल दी, आत्मा को परमात्मा तक जाना है, भगवान तक पहुंचना है, किस प्रकार से सांसारिक मोह माया से विमुक्त होकर के ईश्वर तक पहुंचना है। तो उसमें अगर हमें सदगुरु तक या हम जो चाहते हैं, लेकिन अगर जाता गुरु अंधला चेला खरा निरंजन, अगर ऐसा गुरु मिल गया तो ये बहुत वो दिक्कत की बात होती है। कबीर ने बाह्य आडंबर, बाह्याचार आदि पर जबरदस्त प्रहार किया। इसलिए हम कबीर को एक समाज सुधारक कहते हैं, कबीर को हम क्रांतिकारी कह सकते हैं, कबीर को हम संतों में संत कबीर भी कह सकते हैं। यानी एक समाज सुधारक है, क्रांतिकारी है। इससे भी बड़ी बात यह कि सब पहले मानवतावादी, और एक ऐसे मानवतावादी है कि जिन्होंने सभी को साथ में लेकर के, उस जमाने में हमारा समाज जो था वो अधःपतन की ओर जा रहा था। हिंदू मुसलमान की आपस की जो मुद्दा था, उन्होंने दोनों को खुलेआम चैलेंज के साथ किया, क्योंकि वो निडर था, निर्भीक था, निडर था, जो भी कहता था वो सच कहता था, बिना निडरता के साथ सब कह देता था। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे वन माही, ऐसे गटी गटी राम दुनिया देखे ना न्यारी। देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में इधर उधर घूमते फिरते हैं। 2-4 पूनम भर दी हमने अंबाजी की, या तो 2-4 पूनम हमने डाकोर की भर दी। किसी ने बता दिया नहीं भाई मैं तो एक ही पूनम में गया था चोटीला, मेरा काम हो गया तो अंबाजी को छोड़ के चोटीला जाएंगे। तो ये कबीर जी जो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसई मृग डूडे वन माही, जो हिरण होता है उस हिरण की नाभि के अंदर ही कस्तूरी का वास होता है। लेकिन हिरण को पता नहीं है कि ये जो श्वासोश्वास की क्रिया के परिणाम स्वरूप अंदर से जो श्वास आ रही है वो भागता जाता है, लौटता जाता है कि उस तलाश में, खोज में कि ये कहां से
सुगंध आ रही है। तो कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे वन माई, से घटी घटी राम, यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। कबीर कहते हैं कि आप मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं तो घूमते फिरते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। न मंदिर, न मस्जिद, न काशी, न कैलाश, ये जो है। अब हम लोग मूर्ति पूजा की बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए, हम किसी भी व्यक्ति की आस्तिकता पर कोई मैं बात नहीं कर रहा है, मैं तो कबीर की वाणी पर ही चर्चा कर रहा हूँ। हम मूर्ति पूजा करते हैं। कबीर जी ने मूर्ति पूजा का, रोजा का, नमाज का भी खुल करके विरोध किया। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर से बनी हुई मूर्ति को पूजने से अगर ईश्वर मिलता है तो मैं पूरा हिमालय को पूजने के लिए तैयार। हमारे घर में जो चक्की है जिसमें हम अनाज डालते हैं और उससे वो आटा मिलता है, अगर इसकी पूजा की जाए तो अच्छी बात है। तो ये उन्होंने खुलकर विरोध किया मूर्ति पूजा की, पत्थर पूजे हरि मिले। और इस्लाम संप्रदाय के लोगों से उन्होंने कहा कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरो साहिब बहरो है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरो साहिब बहरो है। और आगे फिर बोलते हैं चीटी पैर नुपुर। अब आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि आप जोर जोर से आप बांग पुकारते, वो तो चीटी, चीटी कितनी, चीटी का पैर कितना, वर्षा मैडम, चीटी का पैर, चीटी कितनी, चीटी का पैर कितना, और उसमें उसका नूपुर, वो पायल, और पायल की भी वो घुघरी जो आप गुजराती में बोलते हैं उसकी आवाज भी वो सब तो सुनता है। वो कहते हैं ना, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरो साहिब बहरो है। यानी वो तो आप दूसरों को वो कर रहे हैं। अगर हम जब भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो स्मरण करना चाहिए एकाग्रता से, एक चित्त से, एकाग्रता से मन लगा करके। बढ़िया, अगर सुंदर सीरियल चल रही है, कोई भी सुंदर सीरियल चल रही है, आजकल तो महिलाओं को लेकर के ज्यादा सीरियल चल रही है, और उन सीरियलों में मैं देखता हूँ, उन सीरियलों में से क्या थी, सीरियल बनाने वाले बढ़िया सीरियल बनाते हैं, उनका उद्देश्य अच्छा होता है, पर उसी में से हम लोग कितनी अच्छाइयों को लेते हैं, उस पर मैं जाऊंगा तो 1 घंटा चला जाएगा, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर मुझे ये कहना है कि मूल मुद्दा ये है कि अगर हम एकाग्रता से, एक चित्त से किसी बढ़िया फिल्म को, सीरियल को देखते वक्त अपने आप को भूल जाते हैं। मम्मी 3 बार बुलाएगी अपनी बच्ची को, बेटा बेटा बेटा, क्या तो मोबाइल में खोई हुई है या सीरियल में खोई हुई है। तो एकाग्रता से अगर हम भक्ति करेंगे तो कबीर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अखड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। देखो उनकी भक्ति देखो, अखड़िया यानी आंखों, अखड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अब देखो, क्या हम ऐसी भक्ति कर सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी अखड़िया जाई पड़ी। गुजराती में बोलते हैं ना कि वो क्या आ गया, मुझे तो बहुत वो पता भी नहीं चलता है उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत जल्दी से गुजराती शब्द मेरे में नहीं वो आएगा, लेकिन वो जो भी कहते हैं, अखड़िया जाई पड़ी निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़ा पंथ निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़ा। राम राम बोलते बोलते उनकी जबान में, अब मनुष्य जन्म लेने के बाद या तो किसी को जाति पर घमंड होता है, किसी को धन पर घमंड होता है, किसी को रूप पर घमंड होता है, अलग अलग तरह का घमंड होता है। उन घमंड को भी उन्होंने तोड़ा है। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोदे मुझे। अब कुम्हार जब मिट्टी को भक्त कुम्हार, हमारा भक्त, ये फील्ड में भी गुजराती में गोरो कुम्हार, हाँ भक्त गोरा कुम्हार। अब आप देख रहे हैं कि वो तल्लीन हो गया तो बच्चा भी उसी अंदर आ गया, वो पैर के नीचे कुचल गया, उनको पता ही नहीं चला। तो मिट्टी को रोकते रोकते वो बहुत खुश होता है, कौन, कुंभकार, कि मैं तो मिट्टी को रोद रहा। तो मिट्टी क्या कहती है, चैलेंज करती है
मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मुझे, एक दिन ऐसो आएगो जब मैं रो दूं तुझे। यानी ये हम मिट्टी में जन्मे हैं, जिसका जन्म है इसकी मृत्यु निश्चित है, ये हमारी क्षण भंगुरता है। और वो भी कहते हैं कि माली आवत देख के कलिया रोवे, है ना, कलिया भी रो रही है। क्यों? क्योंकि जो फूल पल्लवित हुए थे उन फूलों को माली ने चुन लिया, और कलिया रो रही है कि कल हमारी बारी है, देख लीजिए। तो ये भी एक क्षणभंगुरता की बात की है। आज से 600 साल पहले कबीर जी ने संग्रहखोरी की ओर हमें चेतावनी दी थी। आजकल काला बाजार चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है हमारे समाज में। शिक्षा, कबीर की वाणी का एक एक शब्द आज भी इतना ही प्रासंगिक है जितना 600 साल पहले था। वो कहते हैं संग्रहखोरी को लेकर के, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हम लोग क्या करेंगे, 7 पीढ़ियां हमारी खाए ना, इतना इकट्ठा कर लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा दूसरे में, विषय को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। पर हमारे यहाँ एक क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी 7 पीढ़ियां खाए, इतना तो इकट्ठा कर लेंगे। कबीर जी कहते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब, आप इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का मैं लालन पालन कर सकूं। मेरे यहाँ कोई अतिथि आए, ये भारतीय संस्कृति, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, ये हमारे यहाँ अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति। इसीलिए तो विश्व के हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। उस समय के बाद हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम लोग पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये हमारी संस्कृति है। सुबह में समय के मुताबिक उठना, उठ करके ब्रश आदि प्रातः क्रियाओं को निपटा के चाय पीना, उसको बोलते हैं प्रकृति, बराबर। और 10-12 बजे उठना और सीधा चाय पर आक्रमण करना, उसको बोलते हैं विकृति। सुबह समय पे उठना, ब्रश आदि प्राथमिक क्रियाओं को समाप्त करके चाय नाश्ता करना, उसको बोलते हैं प्रकृति। 12 बजे 10 बजे उठना, सीधे चाय नाश्ते पर ख्याति आक्रमण करना, उसको बोलते। खाना खाने बैठे हैं वर्षा जी, और अगर कोई भिखारी आया और हमारे पास 1 रोटी या 2 रोटी है, उसी में से 1 रोटी अगर हम उसको देंगे तो उसको कहते हैं संस्कृति। ये इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति, इसीलिए तो उसको उत्तम हम मानते हैं। तो साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उनकी उलट बात से अभी अगर आप देखेंगे तो गाय, अब देखो अचंबो, देखो टाटा सिंह चराए गाय। अब सिंह गाय को चराएगा, सिंह का तो खाद्य है गाय। लेकिन ये हमारे शरीर की जो इंद्रियों का मन जो है, सबसे बड़ा ये मन जो है वो चलाते हैं और उसी की बात करते हैं। तो कबीर जो है, उस कबीर ने सामाजिक रूढ़ियों का, बाह्य आडंबर का, जो कुछ हमारे समय में तत्कालीन जो चल रहा था, हम लोग क्या करते हैं कि जब दुख आता है, संकट आता है, तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। और अगर हम अच्छे आय आ रही है तो मौज मस्ती, आज इस होटल में, कल एक्स होटल में, कल वाई में, आज क्या खाना बनाएंगे, तरह तरह की चर्चा विचार विमर्श करते हैं। अब कबीर जी वो कहते कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अमृत भाई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होई। और हम लोग जब दुख आएगा, बच्चे की सगाई नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम ईश्वर की शरण में जाएंगे। पर कबीर तो वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन करे न, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होई। अब दूसरी बात ये, कबीर की मृत्यु के बारे में भी तरह तरह है। कबीर 120 साल तक लगभग काशी में रहे। और उस जमाने में ऐसा था, आज भी है, कि काशी में अगर आदमी का निधन होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो स्वर्ग में जाता है। कबीर ने उल्टा किया कि अपना पूरी जिंदगी 100 साल से ज्यादा समय वो काशी में रहे, और अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में ऐसा माना जाता था कि जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। और कबीर ने अपने शेष जीवन जो है वो मगहर में बिताया। इनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ, क्योंकि जन्म देने वाली हिंदू ब्राह्मण कन्या थी, लालन पालन इस्लाम संप्रदाय में हुआ।
एक बड़ा चमत्कार हुआ, किसी ने चद्दर हटाई उसकी शव की, तो वहां शव नहीं था, वहां क्या बन गया, चमत्कार हो गया, फूल। और इन फूलों को उन्होंने आधा आधा बांट लिया। अब आजकल आप देखते हैं हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब प्रथा धीरे धीरे टूट रही है, विभक्त कुटुंब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कम से कम 5-7 कविताएं तो वृद्धाओं को केंद्र में रख करके मैंने लिखी है। अब हमारे यहाँ भाद्रपद आता है, उसमें श्राद्ध के दिन आते हैं, श्राद्ध के दिन आते हैं तो हम दादा परदादा पूर्वजों को हम खीर वीर बना के कौवा को आते हैं, वो करते हैं। और जब जिंदा होते तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते, पेटा नहीं करने का, पुणे में पड़े रहो। और वो भी बहुत संपन्न परिवार के माँ बाप उन वृद्धाश्रमों में होते हैं। तो उन्होंने कहा जिंदा बाप को कोई ना पूजे, जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मर बाप पूजवाया, ऊपर चावल को लेकर कौवे को बाप बनाया। आप देख लीजिए कि भाई जिंदा जब था तब खाना बाना जो देना था तब तो आप माँ बाप ने सेवा नहीं की, और उसकी मृत्यु के बाद श्राद्ध के दिन आते हो, उन श्राद्ध के दिनों में आप मुट्ठी भर चावल और उसकी खीर बना, क्षण अंकुर है, कैसा कि जैसे सुबह होती है, प्रभात होते ही तारे, सभी प्रातः काल होगा तो तारे डूब जाते हैं। तो पानी केरा बूंद बूंदा, अस मानव की जात देखत ही छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। जैसे सूर्योदय होगा और तारे डूब जाते हैं, इस प्रकार से मनुष्य जीवन जो है वो मनुष्य जीवन जो है वही है। कबीर अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक और एक लोक जागरण के नायक थे। लोगों को जगाने का सबसे बड़ा काम जो है वो उन्होंने किया। लोगों को कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। अब देखो वो आदमी को घर का नहीं पड़ी है, अपने घर की पड़ी नहीं है, पड़ी है, और समाज मत हो मेरी जैसी। तो वो बोलने लगे कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। अब देख लीजिए कि जिनमें अगर मेरी तरह की हिम्मत हो परिवार को, संसार को, समाज को छोड़ने की, समाज में व्याप्त रूढ़ियों की, मूर्ति पूजा की, आलोचना की, तरह तरह के जो था। अब कबीर जी कहते हैं कि हम दूसरे लोगों की बुराइयों को देखते, हम सब, मेरे बारे में आपके बारे में कोई थोड़ा बोलेंगे ना तो आपका जो है ना टेम्परेचर जो है ना 47 हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा। कि मेरे बारे में अमृत भाई ने बोला, ऐसा बोला, कि अमृत भाई के बारे में धीरज भाई ने ऐसा बोला, ऐसा तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कबीर क्या बोलता है, बुरा खोजन को मैं चला बुरा मिला न कोई, बुरा खोजन को मैं चला बुरा मिला न कोई, जो मन भीतर ढूंढियो अपनो मुझसे बुरा न कोई। अब देख लीजिए कि मैंने तो मेरी अंतरात्मा को, मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। 12वीं शताब्दी की 15वीं शताब्दी में कबीर का आविर्भाव, जायस्त्री का आविर्भाव, सुर का आविर्भाव, तुलसीदास का आविर्भाव, ये सारी चीजें जो है। और फिर अब जब हम भक्ति करते हैं तो हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी अपने मन को 5 मिनट के लिए स्थिर नहीं रख सकते। सुबह सुबह में अगरबत्ती दीपक जलाएगी तो सास अपनी बहू से क्या बोलेगी, वो जो गैस उभराई ना जाए। अब देखो एक हाथ में दीपक है, अगरबत्ती है, कि वो जो बेटा गैस ना उभराई जाए। तो कबीर क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, मन फिरे, जीभ फिरे, मुख 10 दिशा, मनवा तो 10 दिशे फिरे, यहू सुमरन नहीं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद। तो इस प्रकार से उन्होंने, उस प्रकार से सच्ची भक्ति यही है अमृत भाई कबीर के मुताबिक, कि हम ईश्वर और हमारे बीच का जो भेद है उसको एक पतली एक दीवार है,
आत्मा और परमात्मा के वेदों में भी कहा गया है। क्या कहा गया? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। फिर तुरंत उत्तर जवाब दिए, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म यानी कौन? अहम ब्रह्मास्मि। तो कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाया। देखो कुंभ जो होता है, जल में कुंभ, एक बड़ा ताला, अब कुएं का पानी अलग है, अब घड़ा में पानी गया तो एक घड़े का पानी हो गया, था तो कुएं का। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। अब कुएं में जो पतला जो स्तर है ना, स्तर जो है वो आत्मा और परमात्मा को अलग करती है। कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। यहाँ जो पूंजीवादी जो है, यहाँ जिनके पास जो समृद्ध है, धनिक वर्ग जो ना जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। कबीर ने इनको भी नहीं छोड़ा। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है। यहाँ कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कोई परेशान करते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो सत्यानाश तस्या करनानी हाई लाख से। तो ये हाई लाख से शब्द अगर कोई बोल गया वर्षा मैडम, तो हमको तुरंत होगा कि ये एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जिससे हमें कुछ नुकसान पहुंचे वाला अमृत भाई, बराबर। तो दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, बिना जीव के पास लोग बस बनाओ। तो ये जिस प्रकार, अब देख लीजिए कि कोई हमारी निंदा करेगा, टीका करेगा, हमारे विरोध में बोलेगा, वो हमें जरा भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन कबीर तो क्या बोलता है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाई, अपने घर के पास पास में कुटी बनाओ, कुटी में बना के हमारे बारे में जो भी गलत फलत जो कुछ आलोचना करने दो। निंदक तो नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाई, बिन साबुन पानी पीना। देखो साबुन भी नहीं, ये एरियल भी नहीं, निरमा वॉशिंग पाउडर नहीं, कोई टिकिया बिकिया नहीं चाहिए, एरियल भी कुछ नहीं चाहिए। माननीय श्री स्नेही परमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वक्तव्य का प्रतिभाव दें। माननीय स्नेही परमार जी। जी नमस्कार। अखिल भारतीय साहित्य परिषद कर्णावती क्लब द्वारा आयोजित आदरणीय वणकर साहेब, डॉक्टर धीरज वणकर साहेबનું બહુ જ કબીર વિશેનું સુંદર વક્તવ્ય રહ્યું આજે। મને કબીરનો વિષય જોતા એમ લાગતું હતું કે સમાજના પરિપ્રેક્ષમાં આપણે કબીરને લઈએ, પણ સાહેબે બહુ જ સહજતા અને વિનમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે કબીર વિશે અહીં કઈ વિદ્વતાપૂર્ણ વાત કરવા કરતા કબીર વિશે જેટલી આટલી મિનિટોની અંદર થઈ શકે, પર્યાપ્ત મિનિટોની અંદર એ રીતે વાત કરવાની હતી। એટલે એ મને ગમ્યું શરૂઆતમાં એમનું આ જે કન્ફેશન છે, કારણ કે કબીર એટલો વિશાળ વિષય છે પોતે। કબીરની કવિતાઓની આપણે વાત ન કરીએ, માત્ર કબીર એક પર્સનાલિટી તરીકે, ખાલી વ્યક્તિત્વ તરીકે કબીર એમ કહીએ તો પણ આપણે કેટલા પણ સેશન ઓછા પડે। પણ મને બહુ જ ગમ્યું આ વક્તવ્યમાં એ હતું કે સમાજ શબ્દને સાહેબે પકડ્યો છે। ઘણી વખત કોઈ સજાગ સાંભળનાર ન હોય તેમ લાગે, પ્રેમની વાતો કરી, ધર્મની વાત કરી, એમને સામાજિક કમિટમેન્ટની વાત કરવા છે। આ બધા જ્ઞાન સમાજનો ઘટક છે, પ્રેમ સમાજનો ઘટક છે, કુટુંબ સમાજનો ઘટક છે, માન્યતાઓ કુટુંબનો ઘટક છે, ધર્મ અને ભક્તિ કુટુંબનો ઘટક છે, મનુષ્યની જીવનશૈલી કુટુંબનો ઘટક છે। એટલે કુટુંબને લગતા, કુટુંબની અંદર રહેલી સ્વાર્થ વૃત્તિ, ધર્મની અંદર રહેલો આડંબર, ધર્મની અંદર રહેલી અપૂર્ણતા, એટલે ધર્મની અંદર રહેલી એમ નહીં કહું, પણ ધર્મને ભજવા માટે આપણી અપૂર્ણતા, એક ભક્ત તરીકે આપણે ક્યાં કાચા પડીએ છીએ, એ પરમ તત્વને પામવા માટે એક ભક્ત તરીકેની ઉણપ કબીરે પોતાની કવિતાઓમાં બતાવી અને એને સાહેબે બહુ સારી રીતે બતાવ્યું। મને એ પણ ગમ્યું કે સાહેબે કબીરને કવિ અને સંત એમ બે રીતે જોઈ, ઓવરઓલ એમ કહીએ તો બહુ જ મજા પડી। જરા પણ વિદ્વતાના ભાર વગર એમ જાણે એમ લાગ્યું કે એમને જે સહજ રીતે કબીર સમજાયા છે
એ રીતે કબીરને લીધા. મને 2-3 ઉદાહરણો પણ બહુ જ ગમે. એમણે કુંભકારનું ઉદાહરણ દઈને કેવડી મોટી વાત કરી કે આપણે માટીમાં મળવાના છીએ. માટીને આપણે કેળવવા મેળવવા વાળા કોણ હતા? સાહેબે મને એમ હતું કે આ મુદ્દો આવશે કે કેમ, પણ મારે સ્વીકારવું જોઈએ કે અવળવાણીના સંદર્ભમાં કબીરની અવળવાણીની વાત ન કરીએ તો આપણે કબીરને પૂરા ન પારખી શકીએ. કારણ કે એમની કવિતાનો એ પ્રમુખ એ લાક્ષણિકતા હતી એમની અવળવાણી. સાહેબે પેલો સિંહ ગાય સિંહને ચરાવે છે એવી એક ઉદાહરણ હતું. સાહેબને બહુ જાજી મિનિટો નહોતી એટલે માત્ર થોડો સ્વાદ ચખાડવાનો હતો, એટલે અવળવાણીનો સ્વાદ પણ ચખાડ્યો. અને મને બહુ જ ગમ્યું કે ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને સિંહ એટલે મન. ઇન્દ્રિયને વશ થયેલો છે આપણો મનરૂપી સિંહ. સાહેબના વક્તવ્ય વિશે ઘણી બધું વાત થઈ શકે એવું છે, પણ મારે વક્તવ્ય નથી કરવાનું. પણ મારે મારો રાજીપો વ્યક્ત કરવાનો છે. વણકર સાહેબની કવિતામાં પણ મજા આવી. ખ્યાતિબેન અને વર્ષાબેન શરૂઆતમાં થોડી ટેકનિકલ પેલી ક્ષતિઓ થઈ ત્યારે જે વિવળ થતા હતા એ વિવળતામાં પણ મને આનંદ આવ્યો કે એક આયોજક તરીકે એ વિવળતા અને પ્રિતેશભાઈને પણ યાદ કરવા ગમ્યા કે દોડાદોડી કરીને આ ટેકનિકલ ઇસ્યુઝ સોલ્વ કરીને આપણને આદરણીય ધીરજ વણકર સાહેબ વિશે આપણને સાંભળવા મળ્યા. વણકર સાહેબ મારે એમ કેવું પડશે કે વણકર સાહેબ આજે બોલ્યા સાહેબ વણકર વિશે. થેન્ક યુ સો મચ. પ્રિય સ્નેહીભાઈ, હું વચ્ચે જરાક છૂટી ગયો હતો પણ હું હાજર છું. અરે વાહ, તમારો જ વારો છે ચંદ્રેશભાઈ. હા કવિ પ્રિય સ્નેહીભાઈ, આઈ લવ યુ ડિયર. અરે નારાજ સાહેબ, તમને સાંભળવા માટે તો અમે ક્યારના રાહ જોઈએ છે. થોડુંક નેટવર્ક છૂટી ગયું ડિયર. बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले તું ડાલી ફૂલ જગત કે માલી. પરફેક્ટ સમય જ છો તમે, નેટવર્કમાં પરફેક્ટ સમય જ જોડાયા છો, ચિંતા નહીં. જયમલભાઈ, આ બધું આવડતું નથી બેન. સ્નેહી બી જાણે છે હું બહુ આ બધે મને છે ને આ બધું આવડતું નથી. ચંદ્રેશભાઈ, મારે રેખાએ શીખવાડવું પડે. એક જ મિનિટની રાહ જુઓ. જયમલભાઈ તમને આમંત્રણ આપે છે. જયમલભાઈ આવો, ક્યાં છો ડિયર? ચંદ્રેશ, આપણે જૂના મિત્રો છીએ ભાઈ, બરાબર? એટલે ડિયર તમને ખબર છે મને આ બધું નહીં આવડતું યાર. હા, इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माली जहां देखो वहां. હેલો, ચંદ્રેશ, ચલો હવે કબીરાથી શરૂ કરીએ. યસ, હવે તમે તમારી કવિતા લઈને આવો ભાઈ શ્રી ચંદ્રેશ. હું જરાક અવાજ વધારું છું. ટૂંકી ટચરક વાત કબીરા, ટૂંકી ટચરક વાત કબીરા, લાંબી પડશે રાત કબીરા. વાહ વાહ. સ્નેહીભાઈ બહુ અચ્છી. અને જયમલભાઈ, મારી બેન વર્ષા અને બીજા બધા જ મિત્રો કે ટૂંકી ટચરક વાત કબીરા, લાંબી પડશે રાત કબીરા, અવસર કેવળ એક જ દીનો, અવસર કેવળ એક જ દીનો, વચ્ચે મહિના 7 કબીરા. ક્યા બાત. અવસર કેવળ એક જ દીનો, અવસર કેવળ એક જ દીનો, વચ્ચે મહિના 7 કબીરા. અને સાહેબ બધા સાંભળજો, ખુલ્લમ ખુલ્લી પીઠ મળી છે, ખુલ્લમ ખુલ્લી પીઠ મળી છે, મારે એની લાત કબીરા. જોરદાર. ખુલ્લમ ખુલ્લી પીઠ મળી છે, ક્યા વાત. ખુલ્લમ ખુલ્લી પીઠ મળી છે, મારે એની લાત કબીરા. ને એક મૂરખને મીંડો ગણવા, એક મૂરખને મીંડો ગણવા,
ભેગી થઈ છે નાથ કબીરા. વાહ क्या बात है, क्या बात है। વાહ વાહ જોરદાર. વાહ અને ચંદન. કાપડ છો ને કાણી પૈનું. કાપડ છો ને કાણી પૈનું. ઓહો, કાપડ છો ને કાણી પૈનું. પાડો મોગી ભાત કબીરા. વાહ કાપડ છો ને કાણી પૈનું. પાડો મોગી ભાત કબીરા. ને જીવ હજી તો જબ્બામાં છે. ઓહો, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे कवि। જીવ હજી તો જબ્બામાં છે. ફાટી ગઈ છે જાત કબીરા. વાહ વાહ. ક્યોંકિ તચરક બાત કબીરા. અને મારે એક મીરાની ગઝલ, વર્ષા એક મીરાની ગઝલ. હા હા, ઇરશાદ. અને સ્નેહીભાઈ હાજર છે. જી 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 કવિ સ્વાગત. સ્વાગત છે. કવિ એક મીરાની ગઝલ તમારા સ્વાગત માટે ને મારી બેન વર્ષા માટે અને બીજા બધા મિત્રો માટે. લ્યો વિરહની વાતમાં આવે પ્રથમ પાને મીરા. ઓહો, વાહ ઓહો. લ્યો વિરહની વાતમાં આવે પ્રથમ પાને મીરા. તોય ઘૂંટાતી રહી મારા મહી સાને મીરા. વાહ. વાહ લ્યો વિરહની વાતમાં આવે પ્રથમ પાને મીરા. તોય ઘૂંટાતી રહી મારા મહી સાને મીરા. ને રોજ માળા જપ્યાથી શું વળે. હા, કે રોજ એના નામની તુંય તારી જાતથી થાને મીરા. ક્યા બાત. કે રોજ એના નામની માળા જપ્યાથી શું વળે. થઈ શકે તો તુંય તારી જાતથી થાને મીરા. વાહ. આજ એવું દર્દ ઘૂંટાયું છે એની આંખમાં. આજ એવું દર્દ ઘૂંટાયું છે એની આંખમાં. ભૂત ફરકે સહેજ ત્યાં તો સૌ કહે ગાને મીરા. વાહ વાહ. ક્યા બાત. ક્યા વાત. આજ એવું દર્દ ઘૂંટાયું છે એની આંખમાં. ભૂત ફરકે સહેજ ત્યાં તો સૌ કહે ગાને મીરા. ને સ્નેહીભાઈ વર્ષા મારી બેન બોલો. અને બધા જ મિત્રો શામ રૂપી ઝાંઝવામાં નીર જોયું તો હશે. શ્યામ રૂપી ઝાંઝવામાં નીર જોયું તો હશે. એમ કઈ અમથું જગતને ઝાંઝવું માને મીરા. આહા શું હાઈટ છે ભાઈ. બહુત ખૂબ સાહેબ. એકદમ શ્યામ રૂપી ઝાંઝવામાં નીર જોયું તો હશે. એમ કઈ અમથું અમથું જગત જગતને ઝાંઝવા. વાહ. ઝાંઝવું માને મીરા. અને મારો એક ગમતો શેર કહીને હું વિરમું છું. ઇરશાદ ઇરશાદ જી સાહેબ. બિલકુલ બિલકુલ. મારી સમજણના છેડા પર કે મારી સમજણના છેડા પર જેની પકડ ભારી છે. કે મારી સમજણના છેડા પર વર્ષા મારી સમજણના છેડા પર જેની પકડ ભારી છે. હા, મોડે મોડે જાણ થઈ એ માણસ ધંધાદારી. ઓહો, હા હા હા. ઓહો. ક્યા સૌ મિત્રોનો વાહ. આભાર. વાહ.
મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરજો. અરે ના બહુ બહુ સરસ, દર્દ બહુ સાથે સરસ. હાઈટ સાહેબ અને અધ્યાત્મને તમે જે વાત પકડી છે અદ્ભુત, ખરેખર મજા આવી ગઈ. થોડો મોડો પડે, મને આવડતું નથી યાર. અરે બસ તમને જે આવડે છે એ મજબૂત બસ છે. કરો ને યાર, મજા કરવાની છે નહીં આવડતું તો. તો એક બે ગઝલ કહી દઉં વર્ષા દીદી. ચંદ્રેશભાઈ એકાદી સમયને ગઝલ, થોડું એક ગઝલ વધારે કહી દઉં. થોડું ચંદ્રેશભાઈ, તમારા માટે તો અમારે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ હા, રાખવો જ રહ્યો એટલે- હવે. ગયા છે ને અહીંયા કહેવાય ને કે મોડું થાય છે, પણ તમારા માટે અમારે સ્પેશિયલ ઓફલાઈન કાર્યક્રમ રાખવાનો છે, જેની હવે તમે તૈયારી યસ કરજો. ચલો, આપણે બધા મળીએ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ચંદન. આખિર માફી માંગવાની મારી બે. નથી, બહુ સરસ. આધુનિક કવિતાના કબીર એવા ભાઈ છે ચંદ્રેશ. હે ને? બહુ સરસ, ચલો મળીએ, સરસ. બહુ જ મજા આવી ને. અને શરૂ થાય અંતિમ સુધી પહોંચ્યો પણ છે અને ખૂબ સારો રહ્યો. હું આજની આભાર વિધિમાં સૌ જોડાનાર મિત્રોનો આભાર માનીશ. પહેલા તો ટેકનિકલ ટીમ કે જેણે ટીમનો આભાર. આભાર આજના વક્તાશ્રીનો. બહુ સહજ રીતે જેમ મોઢામાં શીરો મૂકી અને ઉતરી જાય એટલી સહજતાથી મૂકી આપ્યો અને લગભગ બધાને એમની કવિતા પણ એવી જ ખૂબ સરસ થઈ. એ સિવાય આજે જોડાનાર સૌ સાથી મિત્રો માનનીય સંદીપભાઈ, ચંદ્રેશભાઈ, કેટલાક મિત્રો જોડાયા છે જે બની શકે કે આપણા રેગ્યુલર શ્રોતા કે વક્તા નથી, પરંતુ વક્તાશ્રીના આમંત્રણને માન આપીને એ લોકો પણ જોડાયા છે. એવા નિશાબેન વગેરેનો હું આભાર માનું છું. અને આમ જોવા જઈએ તો કબીરનું એક બહુ સરસ સંચાલન ક્યારેક સાંભળવું હોય તો કવિશ્રી આમ તો એ ભજનીક છે અને કબીરને લઈને આખા વિશ્વમાં ગયા છે. યુટ્યુબ ઉપર પહેલા ટિપ્પણીઓના ખૂબ ભજનો મળે છે. એટલે તો મેં કીધું હતું કે કબીર એટલે ભજનનો પણ માણસ, કબીર એટલે ફિલોસોફીનો માણસ. અને તો સમજવું કે પાઠમાં કંઈક ખૂટે છે, ખરું ને વર્ષાબેન? હા, તો મૂળ વાત આ જ છે કે કબીર દરેક ગામડાના લોકોનો પણ છે અને જે અભ્યાસુ છે એમના પણ છે. હવે હું શાંતિ મંત્ર તરફ જઈ અને પછી આપણે આ કાર્યક્રમને પૂરો કરીશું. ઓમ અંતરિક્ષ શાંતિ, પૃથ્વી શાંતિ, વનસ્પતિ શાંતિ. ઓમ. અહીં આ કાર્યક્રમને વિધિવત રીતે પૂર્ણ થયેલો ઘોષિત કરું છું. સૌને એ પહેલા જયમલભાઈ, હા હા જયમલ, બોલો. એક નાની સાખી. એક धीरज वाणी सुन के, धीरज वाणी सुन के, हर्ष भये सबको, बार बार धरीने ध्यान कबीरा, धीरज धरीने के, जहाँ पर ब्रह्म का खेल, दीपक जरे आगम का, बिन बाती बिन तेल कबीरा, बिन बाती बिन तेल. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. बहुत सुंदर सुंदर. फिर एक बार तहे दिल से मैं माफी चाहती हूँ कि टेक्निकल खामी के नहीं कारण कोई, अरे जी सर सुनिए, बिल्कुल